پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ ایک حافظ قرآن لڑکی کو سانپ کے ساتھ قبر کے اندر کیوں دفنایا گیا۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ نہایت ہی سبق آموز اور عبرتناک واقعہ ہے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس واقعہ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں گا تاکہ آپ کو اس واقعے سے عبرت حاصل ہو سکے۔ پیارے دوستو، تیز بارش ہو رہی تھی، اماں ہاجرہ کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے۔ اس نے رو رو کر سارا محلہ آسمان پر اٹھا رکھا تھا۔ کہاں گئی ماں؟ واپس آ جا، خدا کے لیے 6 بج چکے ہیں، مغرب کا اندھیرا ہر طرف چھا گیا ہے، پتہ نہیں میری بیٹی کہاں ہوگی، کیا کر رہی ہوگی۔ اماں ہاجرہ ہمارے گھر میں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں ان کے ساتھ چل کر ان کی بیٹی کو ڈھونڈوں، مگر اتنی تیز بارش میں گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ اماں نے کہا بارش رکنے دو پھر چلی جانا۔ اماں ہاجرہ کی نظر بھی تیز نہیں تھی کہ وہ اکیلے جا سکتی، بیچاری لاٹھی کے سہارے چلتی تھی۔ بیوگی میں اس کا کوئی سہارا بھی نہیں تھا، میرے پاس ہی اپنا ہر مسئلہ لے کر آتی تھی۔ 6:30 بجے تھے، بارش رک چکی تھی۔ میں نے گھر سے بڑی ٹارچ لی اور اماں ہاجرہ کو ساتھ لے کر گھر سے نکل پڑی۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ پڑوس والے صادق چچا مسجد جا رہے تھے۔ ہم دونوں صورتوں کو یوں اندھیرے میں گھر سے نکلنا دیکھ کر پریشان ہو گئے اور پوچھنے لگے، تم لوگ اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ اماں ہاجرہ روتے ہوئے بولی، بیٹا کیا بتاؤں، میری بیٹی آج مدرسے سے واپس نہیں آئی، میں اس کے لیے سخت پریشان ہوں، میں اس کے مدرسے اکیلی جا بھی نہیں سکتی، اس بیٹی کو لے کر مدرسے والوں کے پاس جا رہی ہوں، دعا کرو میری بیٹی مل جائے۔ اماں ہاجرہ رو رہی تھی۔ چچا صادق نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اندھیرے میں تو مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ چچا صادق بھی ہمارے ساتھ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم مین سڑک پر تھے۔ سڑک کے آس پاس لمبی لمبی گھاس اگی ہوئی تھی، موسم بہت سہانا تھا، مگر ہمارے سر پر اس خوشگوار موسم کا کوئی اثر نہیں تھا، کیونکہ ہم دونوں کو بلکہ ہم تینوں کو ماں کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ تبھی کانوں میں ہلکی ہلکی چیخ کی آواز پڑی۔ لگ رہا تھا کہ کوئی دھیرے دھیرے رو رہا ہے۔ اماں ہاجرہ کی نظر تو بہت کمزور تھی، مگر کان بہت تیز تھے۔ کہنے لگی، مجھے اپنی بیٹی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یہیں رک جاؤ اور روشنی ادھر ادھر ڈالو، دیکھو میری بیٹی یہاں پر بیٹھی رو رہی ہے۔ اماں ہاجرہ کی بات صحیح تھی، ہم لوگ رک گئے۔ میں نے ٹارچ کی روشنی جب گھاس پر ڈالی تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی کھینچ گئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے ماں زخمی پڑی ہے، اس کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا اور حالت بھی کچھ نامناسب سی تھی۔ اسے دیکھ کر میری بھی چیخیں نکل گئیں۔ میں نے اسے جس حالت میں دیکھا تھا وہ بہت دردناک اور دل دہلا دینے والی حالت تھی۔ وہ زمین پر یوں پڑی تھی جیسے کوئی جانور کا بچہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ اماں ہاجرہ نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ہائے کس نے میری بچی کی یہ حالت کر دی، میں کہاں جاؤں گی اپنی جوان بیٹی کو لے کر، کس سے حساب مانگوں گی، سچ بتا میری بیٹی، کس نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ اماں ہاجرہ اپنی بیٹی کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی، اماں کچھ بھی تو نہیں ہوا تمہاری بیٹی کو، ہو سکتا ہے کہ کسی نے گاڑی سے ٹکر مار دی ہو تمہاری بیٹی کو۔ نہیں، میں یہ نہیں مان سکتی۔ اماں ہاجرہ زور زور سے چلانے لگی تھی۔ وہ اتنا روئی کہ اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ چچا صادق نے گاؤں سے کچھ لوگوں کو بلا لیا جو چارپائی لے کر آئے۔ یوں اماں ہاجرہ کی بیٹی مہا کو چارپائی پر ڈال کر گھر لے جایا گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید اس کا علاج معالجہ کیا جائے گا، مگر اس نے تو راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ جب گھر جا کر اس کے علاج کو ہاتھ لگایا تو وہ بالکل ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ اماں ہاجرہ رونے لگی، کہنے لگی کہ میں کتنی بدنصیب ماں ہوں جس کے حافظ قرآن بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ محلے کے سبھی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اماں ہاجرہ کے حافظ قرآن بیٹی مہا کے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، مگر لوگ عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ کوئی کہتا کہ اس کی بیٹی نے خود ہی کچھ کیا ہوگا، تو کوئی کہتا حافظ قرآن ہو کر اگر یہ حادثہ ہوا ہے تو اس لڑکی نے ضرور کوئی گناہ کیا ہوگا۔ غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں، مگر ابھی اصل معاملہ تو پیچھے تھا، وہ راستہ جس پر سے پردہ اٹھنا ابھی باقی تھا۔ اماں ہاجرہ کو تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ مجھے کہنے لگی کہ بیٹی، میرے دل میں ایک بات ہے جو میں تم سے ہی کہوں گی، اور وہ میری بیٹی کی آخری خواہش بھی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کبھی اس دنیا سے اکیلی چلی جائے گی، اگر پتہ ہوتا تو میں اس کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھتی، میں تو اسے خواہ مخواہ ڈانٹتی تھی۔ اب اس کی آخری خواہش تو پوری کر دوں، اگر نہیں کی تو خود کو گناہ گار سمجھوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو کفن میں نہیں، اس کے کردے میں دفناؤں گی۔ اماں ہاجرہ نے ایک سفید پھٹا سا کرتا میرے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہے اماں ہاجرہ؟ یہ اس کا وہ کرتا ہے جس میں میری بیٹی نماز تہجد پڑھا کرتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یہی کرتا ہے جسے پہن کر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کا مطلب اسے اپنی موت کا پہلے سے ہی پتہ تھا۔
अम्मा हाजरा अपनी बेटी को बहुत पाक समझ रही थी, मगर ऐसा नहीं था। बाहर के लोग जो बातें कर रहे थे उन्हें सुनकर तो इंसान कानों को हाथ लगाए। मेरे लिए अम्मा हाजरा की परेशानी तो नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी, मगर क्या करती, उनकी बेटी को वो कुर्ता पहनाना था। मैं और मेरी वालदा ने जब अम्मा हाजरा की बेटी को गुस्ल देने का इरादा किया तो हम पर ऐसे कई राज मुनकशिफ हुए जिन्होंने हमारा दिल दहला दिया था। हमने बड़ी मुश्किल से अम्मा हाजरा की बेटी को गुस्ल दिया था, हालांकि वह हाफिज़े कुरान थी, मगर इसकी मैयत के साथ ये मामलात होना हमारी समझ से बाहर था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी किसी हाफिज़े कुरान और नमाज और तहज्जुद की पाबंद लड़की की मैयत के साथ ऐसा भी हो सकता है। मेरे ज़हन में खौफ ने डेरे डाल दिए थे। मैं सोचने लगी थी कि क्या मुझे कुरान हिफ्ज़ करने से बाज रहना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कुरान हिफ्ज़ करने के बाद भी अपनी गलतियों से बाज ना आए तो उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला जो मामलात करता है वो मैंने अपनी आंखों के सामने देख लिया था। मगर मैं अम्मा हाजरा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी कि उसकी बेटी के बारे में इसे ऐसी शर्मनाक हकीकत पता चले कि उसका अपना भी दिल परेशान हो जाए। इसलिए मैं चुप रही थी, मगर लोग कहाँ चुप रहने वाले थे। लोगों के तो मुंह में ज़ुबानें होती हैं और तीर जैसी ज़ुबानें। महल्ले की एक औरत ने लाश को देखकर एक अजीब बात कही थी। अम्मा हाजरा को रोता देखकर उसने जो फिक्रा कसा था वो इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने वाला था। बोली कि अम्मा हाजरा, तुमने तो अपनी बेटी की पारसाई की सफाइयाँ दी थी, लेकिन अगर तुम्हें इतनी ही पारसा लगती है तो तुम इसकी लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा लेती? तुम्हें साफ समझ आ जाएगी कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ है। किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है या फिर अम्मा हाजरा ने इसके मुंह से ही बात खींच ली और इसके चेहरे पर जोरदार तमाचा दे मारा। खबरदार जो तुमने मेरी बेटी मरहूम के बारे में बकवास की। मेरी बेटी पाक और साफ थी, इसका किरदार शीशे की तरह शफाफ था। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? अम्मा हाजरा की बात सुनकर मैं सुन होकर रह गई थी। मैं इसे क्या बता दी कि मैंने तुम्हारी बेटी की मैयत में क्या देखा है। अम्मा हाजरा का गुरूर और मान में तोड़ना नहीं चाहती थी। इसे अपनी बेटी पर भरोसा था। मैं चाहती थी कि इसका यह भरोसा कायम रहे। पोस्टमार्टम की बात ने अम्मा हाजरा को परेशान कर दिया था। बेटी का जनाजा घर से उठने के बाद घर में अजीब सी वहशत उठ रही थी। मैं अम्मा हाजरा के पास आकर बैठी तो वह फिर से फूट फूट कर रोने लगी। देखा था तुमने उस सकीना ने क्या बात की कि मेरी बेटी का पोस्टमार्टम होना चाहिए। अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? लेकिन बेटा, आजकल ज़माना भी तो ख़राब है। मेरा दिल बहुत बुरी तरह छलनी हो चुका था। क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा वैसा हादसा हुआ है? नहीं अम्मा, तुम खामखा शक मत करो। अपनी बेटी के बारे में अच्छा सोचो, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करो। मैंने झूठे दिल से अम्मा हाजरा को तसल्ली तो दे दी, मगर मैं ही जानती थी कि हकीकत क्या है। पर मुझे क्या पता था कि ये राज कभी भी छुप नहीं सकता, क्योंकि जब अम्मा हाजरा की बेटी को कब्र के अंदर दफनाने लगी तो जो भी कब्र खोदते उसके अंदर सांप निकला था। लोगों ने जैसे तैसे करके अम्मा हाजरा की बेटी को उसी कब्र के अंदर ही दफना दिया जिसके अंदर सांप था, और उसको सांप के साथ ही दफन कर दिया। और मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कब्र में दफनाने के बाद माँ के साथ वो होगा जो आज तक किसी ने दुनिया में होते हुए नहीं देखा होगा। ना ही किसी की कब्र पर ऐसा कोई मंजर देखा गया जो कि माँ की कब्र पर देखा जाने वाला था। मैयत को दफनाने के बाद हाजरा बीबी बुरी तरह से बेचैन थी। कहने लगी, मेरा छोर तो इस दुनिया से पहले ही चला गया, अब मेरी बेटी भी नहीं रही, मैं किसके पास जाऊंगी? हाजरा बीबी फिर से रोने लगी। फिर कहने लगी कि मेरे साथ मेरी बेटी की कब्र पर चलो, मैं वहां जाकर अपने आंसू बहाना चाहती हूँ। अम्मा हाजरा, ये तुम क्या कह रही हो? रात का वक्त हो गया है, ऐसे वक्त में कब्रिस्तान नहीं जाते। मैंने इसे समझाना चाहा, मगर वो थी कि समझने से बात नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, मुझे जाना है, मैं अपनी बेटी की कब्र पर जाना चाहती हूँ, मैं इससे बातें करना चाहती हूँ। अम्मा हाजरा बज़िद हो गई। मैंने वालदा से इजाज़त तलब की और अम्मा हाजरा के साथ हो ली। रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। अम्मा हाजरा ने सफ़ेद चादर अपने गिर्द लपेटी हुई थी। हम दोनों कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। हल्की हल्की ठंडी हवाएं थी। अम्मा हाजरा मुझसे बार बार अजीब अजीब सवाल करती। तुम्हें क्या लगता है बेटी कि मेरी बच्ची अल्लाह तबारक व तआला के पास जाकर खुश होगी या फिर परेशान होगी? अम्मा हाजरा के अजीब व गरीब सवाल सुनकर मुझे इस पर तरस आ रहा था, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि अभी इस पर एक और क़यामत टूटने वाली है। अभी तो उसे अपनी बेटी के बारे में एक ज़र्रे के बराबर भी कुछ नहीं मालूम था। 5 ही मिनट के बाद कब्रिस्तान आ गया। हम लोग जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुए तो हमें सामने ही माँ की कब्र नजर आई, मगर कब्र कुछ काली काली सी मालूम हो रही थी। अम्मा हाजरा की हालत देखने वाली थी। टार्च की हल्की सब्ज रोशनी में मुझे कुछ सही नज़र नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपने पाँव पर किसी नरम सी चीज़ का एहसास हुआ। मैं चाहूँगी, मैंने टार्च करीब करके देखा तो मेरे दिल को जोरदार झटका लगा था। मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई थी। आधे हाथ जितना काला सांप मेरे स्लीपर के आए नीचे था। मैं तो सर से पांव तक पसीने से शराबूर हो गई। मेरी टांगें कांपने लगी थी।
तभी आंखें अंधेरे के साथ मानूस हुई तो मैंने वो मंजर देखा कि इसका खौफ आज भी मेरे दिल में बाकी है। माँ की कब्र के इर्द गिर्द काले और लंबे सांपों ने हिसार बना रखा था। एक सांप मेरे कदमों के नीचे भी था। ये सांप माँ की कब्र से काफी फासले पर था। शायद हमें इस बात से खबरदार कर रहा था कि आगे मत बढ़ना वरना तुम्हारा नुकसान होगा। अम्मा हजरा की तो नज़र कमज़ोर थी। वो इससे पहले कि जाकर कब्र पर ढह जाती मैंने इसे रोक लिया। अम्मा हजरा, तुम पागल तो नहीं होगी हो? मैंने इसे असल बात से बेखबर रखते हुए कहा। तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी बेटी मर गई है। उसकी कब्र पर तुम लेटोगी तो उसकी रूह को तकलीफ होगी। चलो घर चलो। नहीं नहीं, ये जुल्म मत करो, मेरे कलेजे को ठंड पड़ने दो। अम्मा हाजरा कब्र के करीब ही बैठ गई और जोर जोर से बयान करने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि इसे इन सांपों के बारे में पता चले। इसे रात को ठीक से नजर नहीं आ रहा था। मैं चाहती थी कि इसकी ये खुशफहमी कायम ही रहे, मगर मेरा अपना दिल बुरी तरह से धड़क रहा था और मैं अम्मा के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसलिए मैं बड़ी मुश्किलों से अम्मा हाजरा को वहां से वापस ले आई, मगर कौन किसी को रोक सकता है। अगले ही दिन असर के वक्त अम्मा हजरा रोते हुए अपनी बेटी की कब्र पर पहुंच गई थी। इस बार मैं भी इसके पीछे गई, क्योंकि अब मेरे ज़हन में और मेरे दिल में अम्मा हजरा की हमदर्दी के अलावा उस कब्र का तजस्सुस भी था। मैं जानना चाहती थी कि रात को जो कुछ मैंने देखा कहीं वो ख्वाब या कोई गुमान तो नहीं था, क्योंकि बाज़ औक़ात कब्र के खौफ को लेकर इंसान का वहम इस कदर बढ़ जाता है कि इसे एक आम कब्र भी खौफनाक नजर आने लग जाती है। असर का वक्त था, धूप खुली खुली सी थी, रोशनी तेज थी, इतनी वाज़े और साफ रोशनी थी कि अम्मा हजरा भी सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही मेरी नज़र माँ की कब्र पर पड़ी और अम्मा हजरा ने भी उसी वक्त कब्र का नज़ारा कर लिया और फिर ताड़े मार मार कर रोने लगी और कहने लगी कि कब्र के बाहर ये हाल है तो अंदर क्या होगा। मैंने भी देखा तो कब्र में और ज़्यादा काले सांप थे। कब्र के ऊपर इतने ज़्यादा सांप थे कि कब्र काली हो गई थी और अंदर की मिट्टी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने ये नहीं सोचा था कि अभी इसके आगे जो होने जा रहा है वो मुझे फिर से अल्लाह तबारक व तआला के करीब कर देगा। मगर सवाल तो ये था कि एक हाफिज़ कुरान लड़की से ऐसा क्या गुनाह सरजद हुआ कि वो इस दुनिया में इस तरह ज़लील रुसवा होकर अल्लाह तबारक व तआला के पास गई और फिर इसकी कब्र का भी पर्दा न रहा। इसके ऊपर भी सांप आकर इस कदर जमा हो गए कि किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसकी कब्र के करीब भी जाए। मेरे लिए सब कुछ देखना मुश्किल था, मगर अम्मा हाजरा तो माँ थी। लोगों की तरह बातें करने की बजाय वो अपनी बेटी के बारे में परेशान हो गई। कहने लगी, मैं मुफ्ती साहब के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा क्या करूं कि उस पर से आज़ाब कम हो जाए। काश मुझे कोई बता दे कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह किया था। अम्मा हाजरा रोती पीटती मस्जिद में गई। उसने अपने घर से जितना राशन था निकाल दिया, इससे खाना पकाया और गरीबों को खिलाया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की कि मेरी बेटी पर से आज़ाब ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। माँ की कब्र पर मुसलसल काले सांप डेरा जमाए हुए थे और वो इतने ज़्यादा थे कि कोई इन्हें हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिर कुदरत के आज़ाब में कौन दखल अंदाजी कर सकता है, ये तो कुदरत का निज़ाम है। अगले ही दिन सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि अम्मा हाजरा के घर के बाहर एक ऐसा मंजर देखने को मिला था कि लोग अम्मा हाजरा पर तरस खाने लगे। उसने अपने घर का सारा सामान निकाल कर बाहर रख दिया। रोती हुई वो सदाएं लगाती, कोई गरीब हो आकर मेरे घर से जो चाहे उठा कर ले जाए। मैं सब अपनी बेटी के नाम पर सदका कर रही हूँ। किसी को मेरे घर खाना हो तो आकर खाना खा ले। मैं अपनी हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की राह में कुर्बान कर रही हूँ। ऐ मेरे रब, मेरी बेटी को माफ़ कर दे। अम्मा हाजरा ने पहले अपने घर का सारा सामान निकाल कर सड़क पर नीलाम कर दिया। किसी को कोई चीज़ सस्ते दामों में दे दी तो कई बेवाओं को मुफ्त में दे दी। अम्मा हाजरा अपना सर पीटती और कहती कि मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी की आखिरत बचाना चाहती हूँ। अम्मा हाजरा के घर का सारा सामान एक हफ्ते में गरीब गुरबा उठा कर ले गए थे। जाहिर है लोगों की अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। अम्मा हाजरा ने सोचा था कि इतना बड़ा सदका और कुर्बानी करने के बाद इसकी बेटी की कब्र से आज़ाब हट जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अम्मा हाजरा हर रोज़ जाकर अपनी बेटी की कब्र देखती तो बदस्तूर वहाँ पर सांप जमा रहे थे। ये देखकर अम्मा हाजरा सोचने लगी कि आखिर उसकी बेटी से कौन सा इतना बड़ा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से इसे इतना सख्त आज़ाब हो रहा है। अम्मा हाजरा के लिए ये सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। वो लुट पुट गई थी। अब तो वो अपने घर में बैठी बस खाली नमक के साथ रोटी खाती थी। लोगों को इस पर तरस तो आता, मगर इसे खुद पर तरस नहीं आता था। एक दिन अम्मा हाजरा ने अपना जेवर भी बेच दिया, जो कि इसका सबसे कीमती और सबसे आखिरी असासा था। जेवर बेचकर उसने जैसे खुद को अल्लाह तबारक व तआला के आगे सौंप दिया था। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था जो वो बेच पाती। सड़क पर आ गई थी बिल्कुल, मगर इसके बावजूद भी आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि माँ की कब्र से ना ही सांप हटे और ना ही अम्मा हाजरा को सुकून आया।
तंग आकर अम्मा हाजरा नमाज के लिए बैठ गई। मुसल्ले पर बैठी, न खाती न पीती, बस अल्लाह तबारक व तआला के सामने रोती रहती और सुबह शाम जो भी गुजरता उसे आवाज़ देकर कहती, मेरी बेटी के लिए दुआ करो, इसका अजाब कम हो जाए। अम्मा हाजरा तो सूख कर कांटा हो गई थी, मगर उसे अपनी बेटी का गुनाह समझ नहीं आ रहा था कि तभी एक दिन एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि माँ नामी लड़की से मिलना चाहती है। मैंने उसे सारी बात बता दी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कहने लगी, मुझे फ़ौरन माँ की माँ के पास ले चलो। मैं उसे लेकर फ़ौरन अम्मा हाजरा के पास आई तो उसने अम्मा से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी की सारी हकीकत भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे इसके कमरे में ले चलो। अम्मा हाजरा तो उस अंधे की मानत थी जिसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत बस 2 आंखें ही होती। वो उसे फ़ौरन अपनी बेटी के कमरे में ले गई। माँ के कमरे में जाते ही उस लड़की ने उसका कमरा उल्ट पुल्ट कर दिया। कुछ ना मिला तो उसका बिस्तर उल्ट दिया। नीचे रखे मोबाइल फ़ोन ने अम्मा हाजरा को भी हैरान कर दिया था। ये तो एक स्मार्टफोन था। लड़की ने स्मार्टफोन लेकर खोला तो इसका मवाद देखकर हम लोग भी हैरान रह गए थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अम्मा हाजरा की बेटी ऐसे निकलेगी, चंद पैसे कमाने की खातिर अपने लिए जहन्नम खरीदने चल पड़ेगी। मगर अल्लाह तबारक व तआला तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। उस लड़की ने बता दिया कि माँ सिर्फ खुद ही नहीं बुरी चीज़ें देखती थी, बल्कि वो लोगों में भी बुराई फैलाती थी। उसने अगरचे खुद को तो इस्तेमाल नहीं किया, मगर इधर उधर ऐसा नाजेबा मवाद दूसरों को दिखाकर अपने लिए कब्र में आज़ाब खरीद लिया। ये माँ की खुशकिस्मती थी कि उसके मोबाइल पर किसी किस्म का कोड नहीं था, क्योंकि उसकी माँ को नज़र नहीं आता था, तो उसे कोड लगाने की ज़रूरत महसूस न हुई। यूँ भी माँ से छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करती रही। इस तरह उस लड़की ने माँ के फ़ोन से वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी। चुनाचे माँ की कब्र से सांप हट गई। उसकी माँ के दिल को भी करार आ गया। प्यारे दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि आखिर इसमें क्या मसलत है। यकीन मानिए, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने माँ पर करम ना किया होता तो उस लड़की को माँ के घर ना भेजता। ये तो माँ के गुनाहों को माफ़ करवाने का एक बहाना था। बस यही वो दिन था जब मैंने कुरान पाक से अपना रिश्ता फिर से इस्तवार कर लिया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि हाफिज़ कभी भी अल्लाह तबारक व तआला के कहर में नहीं आ सकता। अल्लाह तबारक व तआला उसे अपने कहर से बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। और वैसे भी उसकी माँ ने बहुत सारी दुआएं की थी और अल्लाह तबारक व तआला की राह में सदका और खैरात किए थे, क्योंकि सदका बलाओं को टाल देता है और मुसीबतों को दूर करता है। इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की दुआओं और सदक़े की वजह से उसकी कब्र से अजाब को टाल दिया था। प्यारे